زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے برکت کا باعث۔ آمین۔ شکریہ۔ استطاعت کھول دیں۔ بار بار میں اس کو ہلایا کریں۔ ابھی ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت سنی، 2 آیتیں ہیں یہ، اور انہی 2 آیتوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشیدہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ خدا خبردار کرتا ہے، خدا یسوع مسیح تمام مسیحیوں کو خبردار کرتا ہے کہ جو راستہ چوڑا ہے اس کے چلنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو راستہ سکڑا ہے، تنگ راستہ ہے، اس پر چلنے والے کم لوگ نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ خبردار کیا جاتا ہے کیونکہ ایک مسیحی ایماندار یا جو شاگرد ہے وہ تنگ راستے کی طرف چلے گا تو وہ مسیح کے پاس پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ یسوع مسیح کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ذہن رکھیں۔ یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ اس میں جانے والے کیا ہیں؟ کم لوگ ہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو سکڑا ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے۔ اب ایماندار جو ہے یہ اس راستے کو اپناتے ہیں، جب ٹھیک طریقے سے وہ خدا کے حکمت پر عمل کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ان کو زندگی کا تاج ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے انعام بھی ہے۔ اب جتنے لوگ تو وفادار ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلے اور اس راستے پہ چلے جو تنگ راستہ ہے جس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں مشکلات تو ہیں لیکن وہ ختم کہاں پہ ہونے والا ہے؟ کہاں پہ ختم ہونے والا ہے؟ آسمان پر، خدا یسوع مسیح کے پاس۔ ہم جب یہ راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہم دکھوں میں مشکلات میں گھرتے ہوئے اور جب چلتے جائیں گے تو آخر کار پھر ہم خدا یسوع مسیح کو پالیں گے اور اس میں کثرت کی زندگی بھی ملتی ہے جو ختم ہونے والی بھی ہے۔ وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس راستے کی ضرورت ہے؟ جو سکڑا راستہ ہے، اس کو اپنائیں گے تو پھر ہم اس طرح یسوع مسیح کے پاس جا سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو چوڑا راستہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ چوڑا راستہ ہے اور اس میں اساشے بھی بہت ہیں، اس میں عیش و عشرت بھی دنیا کی بہت زیادہ ہے۔ آپ اس میں جسمانی جو آپ کی خواہشات ہے ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں شاید آپ کو بہت سارے دوست بھی مل جائیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، آپ کے پاس دھن دولت ہو تو پھر آپ کے دوست بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ آپ ایسے ایسے تو کر لیں گے لیکن وہ راستہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ راستہ یسوع مسیح کی بجائے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے چلتا ہے، بجائے آپ ہلاکت کی طرف جانے سے تنگ راستہ اختیار کر لیں، دنیا کی عشرت کو چھوڑ دیں تاکہ آپ خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچ سکے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی کو جو خدا یسوع مسیح کے پاس جانے والی ہے اس کو دیکھیں، اس کو چنیں کیونکہ وہ کثرت کی زندگی دینے والا ہے، لیکن عیش و عشرت کی زندگی کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے، موت ہے۔ آخر کار موت آئے گی اور ہلاکت آئے گی۔ بے شک دنیا میں بہت سارے یار دوست ہوں گے۔ آج کل آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک بھائی آئے ہیں، بڑا روپیہ پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو اب ان کا کوئی بھی دوست نہیں رہا۔
जब रुपया पैसा होता है उसी वक्त आपके दोस्त भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप उनको ऐशो ऐशरत की दुनिया दिखाते हैं, आप उनको उस रास्ते पे ले चलते हैं जिसमें साशें बड़ी हैं। लेकिन जब आप तंग रास्ते पे चलते हैं तो फिर मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, और चौड़ा रास्ता जो है, कुशीदा रास्ता, वो हलाकत को पहुंचा देता है, वो हलाकत को पहुंचाता है। आए एक हवाला देखते हैं जरा, इंसान 16 बाब और उसकी 25 आयत को जब देखते हैं, 688 नंबर पेज है। चौड़ा रास्ता जब हम इख्तियार करते हैं जो कुशीदा है रास्ता है, लेकिन वो कहां पे पहुंचा देता है? हलाकत को पहुंचाता है। हाँ जी, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन उसके इंतहा पर क्या है? मौत की राहें हैं। मौत की राहें हैं जो आपको नजर आता है, बड़ा खुला रास्ता है, यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो फिर हम जल्दी शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लास्ट पे क्या है? मौत खड़ी है, मौत खड़ी है। इसलिए आज मैं अक्सर जब ड्राइविंग करता हूं तो मेरी कोशिश होती है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना, मेरी कोशिश तो मैं शॉर्टकट मारूं, शॉर्टकट गलियों से इधर उधर से निकल के। मेरी एक बहन बन गई कोरियन, जूलिया उसका नाम था, काफी देर वो हमारे साथ रही। तो एक दिन जब हम आ रहे थे तो मुझे कहती है, आसिफ भाई आप गाड़ी चलाई। मैं कहता चलो मैं चलाता हूं, और मैंने फिर वही रास्ता इख्तियार किया। और जब वापस गए तो कहती अब गाड़ी मैं चलाऊंगी। मैं क्या आप चला लें? उसने नहर पर गाड़ी चलाई, हमने जौहर टाउन जाना था, वो सीधी जौहर टाउन चलेगी। उसने कहा पाकिस्तानियों की ये आदत है छोटा रास्ता अपनाने को, तो चाहे तंग होके लेट पहुंचे, लेकिन सीधा रास्ता इख्तियार करें ताकि आप जल्दी से वहां पे पहुंच जाएं। लेकिन शायद वो उस रास्ते को नहीं जानती थी, क्योंकि कई बार हम उस रोड पे चले जाते हैं जिसमें फास्ट गाड़ी चलती है, लेकिन अगर फास्ट गाड़ी की कतई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें मौत वाकया होती है। आप तंग रास्ते पे चलेंगे तो आप गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ा सकते, आप कम स्पीड पे चलेंगे और आपकी जान जो है वो महफूज रहती है। इसलिए हमें यहां पर भी हम देखते हैं कि ये रास्ता, दोबारा से इसको पढ़ लेते, लिखा है ऐसी रात भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। वो सीधी तो मालूम होती है, वो अच्छी तो लगती है कि बड़ी चौड़ी है, अभी यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके एंड पे क्या मिल जाती है? मौत खड़ी है। और हम देखते हैं कि हमें इस रास्ते को छोड़ने की जरूरत है, और तंग दरवाजा सुकरा रास्ता जो है वो जिंदगी को पहुंचाता है, और ये रास्ता जो है ये खुदावंद यीशु मसीह है। तंग रास्ता जो है ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। आए जरा, जो दरवाजा है खुदावंद यीशु मसीह है, तंग दरवाजा। यूहन्ना 10 बाब उसकी 9 को देखते हैं, 121 नंबर पेज है, यहां पे लिखा है। हाँ जी, पढ़ेंगे कि मैं पढ़ दूं? यूहन्ना 10 बाब पर उसकी 9 है। दरवाजा मैं हूं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं दरवाजा मैं हूं, और वो दरवाजा तंग है, उसमें मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि जब हम उस पर चलते हैं तो हमें दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है, ऐशो ऐशरत को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमसे वो रास्ता चुनवाना चाहते हैं जो सुकड़ा है, जो जिसका दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है, वो तंग दरवाजा है। लिखा है कि दरवाजा मैं हूं। हाँ जी, अगर कोई मुझसे दाखिल हो, अगर कोई मुझसे दाखिल हो पाएगा, तो वो क्या करेगा? निजात पाएगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह से हम दाखिल होंगे, उसको हम हासिल करेंगे, तो फिर हम निजात पाते हैं। वो दरवाजा जो है वो हमें निजात की तरफ लेके चलता है। आज हमें जरूरत है कि हम उस रास्ते का चुनाव करें जो निजात का रास्ता है। जी आगे बढ़े। और अंदर बाहर आया जाया करेगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा,
और चारा पाएगा। और चारा भी पाएगा। जो उस रास्ते से, उस दरवाजे से जो खुदावंद यीशु मसीह है उससे दाखिल होगा, लिखा है कि वो अंदर बाहर भी आया जाया करेगा और चारा भी हासिल कर सकता है। आज हमें जरूरत है कि हम उस रास्ते को अपनाएं जो तंग है और खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके हमें जाता है। आए दरवाजे के बारे में देखते, रास्ता भी यीशु मसीह है। यहाँ पे हम देखते हैं और रास्ता भी यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत को पालें जरा। यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। हाँ जी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं चुनते, उस रास्ते को नहीं चुनते जो सुपड़ा है, जो दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाजा हूं, अगर हम उस दाखिल नहीं होते उस दरवाजे में तो हम बाप के पास भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएं और अपनी जिंदगी को उस बदल पर लेकर चलें। वो रास्ता सुकड़ा है, तंग है, मुश्किलात से भरा हुआ है, लेकिन जब हम उस पर चलते हैं तो वो रास्ता हमें निजात की तरफ ले चलता है। अब दरवाजा जो है, ये दरवाजा और रास्ता दोनों खुदावंद यीशु मसीह है, और लेकिन ये ईमानदारों के लिए पैगाम है। ये पैगाम जो है ये ईमानदारों के लिए है कि ईमानदार जो हैं वो उस रास्ता पर चलते हैं जिस रास्ता पर खुदावंद यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है। यीशु ने फरमाया कि तुम वो रास्ता चुनो, दरवाजा मैं हूं। तो कहता है दरवाजा मैं हूं, और फिर वो कहता है कि मेरे बगैर बाप के पास भी कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता बनाता है कि मैं वो रास्ता हूं जिसके वसीला से तुम बाप के पास जा सकते हो। अब ईमानदार जो है, अगर इस रास्ते पे चलना है तो इसमें सबसे पहले ईमान आता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, और फिर नज़्म और ज़ब्त के साथ चलने की जरूरत है, और फिर बरादराना मोहब्बत रखने की जरूरत है। अगर इस रास्ते पे चलना है तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में नजर आनी चाहिए, और अगर हमारी जिंदगी में ये चीजें नहीं है तो शायद फिर हम चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी जिंदगी जो है वो उस रास्ते पे नहीं चल रही जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। ईमान, नज़्म और ज़ब्त, बरादराना मोहब्बत और बर्दाश्त की जरूरत है। जब तंग रास्ते पे चलते हैं तो इनमें सबसे बड़ी जो बात है ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। जब हम बर्दाश्त करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करेंगे, वो रास्ता अपनाएंगे जो तंग है लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाता है, और चौड़ा रास्ता जो है वो हलाकत की तरफ हमें लेके जा रहा है। आज हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम इन चीजों को अपनाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना बेहद मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करते हैं, उस दरवाजे से दाखिल होते हैं, तो दुनिया की ऐशो इशरत को, दुनिया की तमाम चीजों को हमें फिर छोड़ना पड़ता है जो हमें याशी की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें ऐसी चीजों की तरफ लेके जाती हैं जिसका अंजाम फिर हलाकत है। इसलिए आज हमें चुनाव करने की जरूरत है, और अगर रास्ता इख्तियार करना है आसान तो फिर उसके सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। मौत खड़ी है, वो सीधा तो है लेकिन वो फिर हमें मौत की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ चलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दुनिया की ऐशो इशरत में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें खुदा की बरकतें हमसे दूर हैं। खुदा फिर हमें किसी किस्म की बरकत नहीं देता। अगर बरकतें लेनी है तो फिर हमें तंग रास्ता चुनने की जरूरत है। जब हम तंग रास्ते पे चलेंगे, मुश्किलात तो हमारी जिंदगी में बहुत आएंगी, लेकिन वो रास्ता सीधा हमें खुदावंद यीशु मसीह पर आसमान पर ले जाएगा। जब हम तो फिर हम सीधे खुदावंद के पास जाने वाले हैं। आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम किस रास्ते पे चलें? कहीं हमने वो रास्ता तो नहीं चुन लिया जो हलाकत की तरफ जाता है, हमें मौत की तरफ से जाता है? क्या हम रास्ते पे तो नहीं चाहते, अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं तो आज हम जिंदा हैं तो हमें उस रास्ते को चेंज करने की
जरूरत है और वो रास्ता तैयार करें जो सुखड़ा है, तंग है, उसमें मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन वो खुदा यीशु के पास जाने वाला है। तो सुबह से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को उठाएंगे।